Hi everyone, welcome back to another YouTube video, and in this video we're going to talk about what are cognitive distortions. Before getting ahead, I'm going to explain you a basic definition of cognitive distortion. So cognitive distortion is not anything which is very unique or very strange phenomena. It happens to everyone, and it is just an irrational or faulty thought that a person develops over a certain period of time. It became a pattern for you to think the same thing or other things in the same way that you are thinking with an irrational thought. For example, if someone did bad to you, some XY person did bad to you, now you're going to generalize it कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो हर कोई मेरे साथ बुरा करेगा. So that is your irrational thought कि सब बुरा करेंगे, and you are thinking the same way for each and everyone out there कि बाकी लोग भी मेरे साथ बुरा करेंगे. So before getting ahead, let's start with the your definition of cognitive distortion. If you know anything about any distortion or you know anything about cognitive distortion, please comment down below. So let's just begin with first distortion, which is filtering, in which a person starts focusing on negative points only, and he or she rejects the positive aspects of that, and they only focus on the negative portion. Like I said in the example कि आपके साथ किसने बुरा किया तो आप सिर्फ उनकी बुरी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे. आप एक बार को ये भी नहीं देखोगे कि उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा भी किया था या नहीं किया था लाइफ में, बट आप सिर्फ उनकी बुरी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे. द नेक्स्ट इज कैटास्ट्रोफाइजिंग, विच इज इन दिस यू गोइंग टू ignore all the positive aspects and you're going to rigidly focus on the negative aspect of that situation. And then we have polarized thinking, that is your thinking is too rigid. Either you believe in all or none factor, that is कि या तो ये होगा या फिर ये नहीं होगा. there is no gray in between, either it's black or white. You're not going to focus on the gray area or the area between your situation. So we have control fallacies, which are mistaken belief or false thought that you have in mind. This is the example of basically you have a tendency ki if I'm going to get good marks then only my parents will going to love me. ताकि आपको दिमाग में ऐसा एक आप फैलेसी कंट्रोल कर लेते हो, फैलेसी बना लेते हो अपने दिमाग में. एक आपका मिस्टेकन बिलीफ होता है ये कि अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे तभी आपके पेरेंट्स आपको प्यार करेंगे, अदरवाइज आपको नहीं करने वाले. सम केसेस में ऐसा होता है कि एक्चुअल में ऐसा होता है, बट कहीं बच्चे जो हैं ऐसा अपने आप के अंदर प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा अगर हम प्यार चाहिए हमें तो देन वी हैव टू स्कोर गुड मार्क्स. Then we have heaven's reward fallacy, in which people expect others to self-sacrifice themselves. आपके लिए लोग sacrifice करना start करते हैं. अगर आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया then they should sacrifice their whole life, their whole potential, their whole things to you. कि आपके लिए वो सब basically कुर्बान कर दे आपके लिए. Fallacy of fairness. तो fallacy of fairness is basically in which people expect अगर वो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में या इधर दे आर बीइंग फेयर इधर दे आर बीइंग काइंड, तो उनके साथ भी अच्छा होना चाहिए. कि मैंने अगर किसी की हेल्प करी है, सपोज आई हैव डोनेटेड सम मनी टू द बेगर, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बेगर भी बदले में आपको अच्छा करेगा या फिर कोई और XYZ पर्सन आपकी लाइफ में आपकी मदद करेगा ही करेगा. इफ इट्स योर चॉइस टू बी गुड, टू बी फेयर इन लाइफ, ना कि आपको मैंडेटरी किसी ने बोला गया है. तो दैट इज अ distortion that people have. Then we have personalization. पर्सनलाइजेशन के अंदर जो है एक इंसान अपने चीज़ों को लेकर या उसकी चीज़ें रिलेटेड हैं भी या नहीं है, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल भी है, तब भी ही और शी गोइंग टू टेक charge of everything. Everything will be related to them only. If anything is happening outside their control or within their control, they'll think that they are the one who is responsible for that. They are the one who is going to take care of it. तो basically वो अपने ऊपर ले लेते हैं हर चीज़ की, जो चीज़ भी हो रही है लाइफ में वो मेरे रिलेटेड ही है और मुझे ही उसे सॉर्ट करना है. Then we have global labeling. That is basically an extreme version of overgeneralization, जिसके अंदर जो है आप globally label कर दोगे किसी को कि let's say example लेते हैं stereotype का कि if someone is black तो आप ये ग्लोबल लेबल कर दोगे उनको कि ब्लैक पीपल आर नॉट गुड. अगर एक ब्लैक इंसान ने आपके साथ गलत किया, दैट डजंट मीन एवरीवन विल गोइंग टू behave wrong with you or
आपके साथ गलत ही करेंगे। तो ये ग्लोबल लेबलिंग हो जाता है कि दुनिया के अंदर कहीं भी ब्लैक लोग हैं तो वो मेरे साथ बुरा ही करने वाले हैं। देन वी हैव टनल विजन विच इज़ ऑल्सो लाइक मोस्टली रिलेटेड टू फिल्टरिंग आउट ओनली, कि आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हो, आप पॉजिटिव चीज़ों को सब इग्नोर कर देते हो। देन वी ऑल्सो हैव माइंड रीडिंग का डिस्टॉर्शन, जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है हमें पता लग गया है कि इफ आई एम आस्किंग माई फ्रेंड टू टेक माई कॉल और वो नहीं उठा रही है मेरी कॉल, तो मैं ये सोच लूँगा कि शायद उसे मुझसे दोस्ती नहीं रखनी, चाहे वो बिजी है, चाहे वो उसको 100 काम है ज़िंदगी में, बट हम ये मान लेंगे कि उसको मेरे से दोस्ती नहीं रखनी। तो दिस इज़ कॉल्ड माइंड रीडिंग का फैलिसेशन, या फिर हम कहेंगे माइंड रीडिंग का डिस्टॉर्शन, जो एक इंडिविजुअल डेवलप कर लेता है ओवर टाइम। देन वी हैव जंपिंग टू द कंक्लूजन। सो एक अदर डिस्टॉर्शन है ये कि जिसके अंदर जो है एक इंसान सीधा रैशनली नहीं सोचेगा, वो इमोशनल स्टेट में आकर सीधा कंक्लूजन पे जंप करता है कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्विच माई जॉब क्योंकि मेरे साथ मेरे कोवर्कर ने अच्छा बिहेव नहीं किया। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन कि आपको उस चीज़ पे बात करके आप उस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हो, बट आप सीधा कंक्लूजन निकलो कि मैं तो जॉब ही छोड़ दूंगा। देन वी हैव इमोशनल रीजनिंग कि कुछ सिचुएशन आई आपके पास दैट फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू चूज बिटवीन 2 ऑप्शंस। एक आपके घर के पास है, क्योंकि आप एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान हो तो आपको घर के पास रहना अच्छा लगता है। सेकेंड इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी जो घर से बहुत दूर है, एंड यू आर गोइंग टू लीव दैट अपॉर्चुनिटी क्योंकि आपको घर के पास रहना है। जो बीइंग इमोशनल, आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हो कि आपकी ग्रोथ कहाँ पर है, रादर देन आप सोच रहे हो कि कहाँ मेरे इमोशंस वेरी कर जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में हो जाऊँगा बाहर जाकर, बट आप उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं ले रहे। देन वी हैव ब्लेमिंग। ब्लेमिंग इज़ अनदर काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, जिसके अंदर दुनिया में कुछ भी हो रहा है या फिर आपके साथ गलत हो रहा है, किसी और के साथ गलत हो रहा है, आप दूसरों को ब्लेम करोगे या फिर आप खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दोगे। मोस्टली इसमें यही होता है कि लोग दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इफ समथिंग इज हैपनिंग इन देयर लाइफ विच इज नॉट राइट, दे आर गोइंग टू ब्लेम अदर्स फॉर दैट एज वेल। लाइक एक बेसिक एग्जांपल है कि आपकी जॉब नहीं लग रही, आप प्राइवेट सेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हो, बट आप गवर्नमेंट को उसके लिए अक्यूज कर रहे हो कि गवर्नमेंट की गलती है कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसे डिस्टॉर्शन भी होता है। देन वी हैव फैलेसी ऑफ चेंज, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है कि जो उसके साथ है एक इंडिविजुअल, लाइक इट कुड बी फ्रेंड, इट कुड बी अ पार्टनर, कुड बी एनीवन, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए चेंज हो जाए, लाइक द चेंजेस यू वांट इन देम, कि आप उनसे उम्मीद करना स्टार्ट कर देते हो कि आप यार तू मेरे साथ है तो तू मेरे लिए चेंज हो, यू शुड चेंज फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से अटैच होते हैं, तो हम उनको फिट देखना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो चेंज हो जाएं, अपने आप को चेंज कर लें, उनकी लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी मर्जी, उनकी विलिंगनेस हम नहीं देखते और हम अपने ऊपर भी वो चीज़ हावी होने देते हैं कि आई वॉन्ट देम टू चेंज, आई वॉन्ट देम टू चेंज, बट वो चेंज नहीं हो रहे हैं। देन वी हैव शुड स्टेटमेंट्स। देन व्हेन पीपल स्टार्ट यूजिंग शुड वेरी ऑफन, कि आप जजमेंट्स इंक्लूड कर रहे हो दैट आई शुड बी डूइंग दिस, यू शुड बी डूइंग दैट। शुड इज अ डिस्टॉर्शन फॉर रियल। ऑलवेज बीइंग राइट, द लास्ट जो हमारी जो डिस्टॉर्शन है दैट इज ऑलवेज बीइंग राइट, कि आप हमेशा सही हो, यू आर ऑलवेज राइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कई बार आप गलत हो सकते हो, कई बार आपके फैक्ट्स मैच नहीं कर सकते दूसरी चीज़ों के साथ, कई बार आपकी सिचुएशन सही नहीं है, आपके ओपिनियन सही नहीं है, बट वी गोइंग टू एक्सपेक्ट कि हम ही सही हैं हमेशा, ऑलवेज बीइंग राइट। सो आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और आप ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आई होंगी जिसके अंदर आपको लगा होगा कि यार इसमें तो ये डिस्टॉर्शन मुझे लग रही है कि है, या फिर आपको खुद की लाइफ में भी ऐसा लगा होगा कि यार मेरे को तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ, तो मैं पक्का ओवर जनरलाइजेशन कर रहा हूँ, या फिर मैं हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा पर्सनलाइजेशन कर रहा हूँ। सम एग्जाम्पल्स फॉर यू टू फाइंड आउट कि कौन सा डिस्टॉर्शन उन लोगों के अंदर है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट I have failed my exam and I think I'm a failure. So you just have to comment down कि इस individual को कौन सी distortion he or she is suffering. Then we have another one that my friend is not picking up my call. Maybe she don't like me. So this is another type of distortion which we have already studied. तो आप लोग इसको भी बता सकते हो कि ये क्या distortion वो individual face कर रहा है. Then we have another example which is they have liked my PPT but I think they are just being nice to me, they didn't like it in the reality.
दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज उन्हें मेरे साथ अच्छे रिलेशन पर हैं वो लोग, या फिर ऐसा कुछ. तो आई वुड बी रियली हैप्पी इफ़ यू कैन कमेंट डाउन एंड टेल अस कि कौन सी डिस्टॉर्शन किसको है. इफ़ यू थिंक कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कभी डिस्टॉर्शन का रहा है, इफ़ यू हैव फेल्ट इन अ सर्टन वे कि इसको कुछ डिस्टॉर्शन है या मुझे कुछ डिस्टॉर्शन है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना कि आपको क्या लगा है कि कौन सी डिस्टॉर्शन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम.